Hello students and welcome back again to our video tutorial, and this lecture is a continuation of our previous lecture and we have started compound epithelium. So compound epithelium is a tissue where cells are arranged in multi-layers. If we compare simple epithelial tissue with compound epithelial tissue, simple epithelial tissue was having a single layer of cell while compound epithelial tissue is multi-layered. In compound epithelium, I have told you about a tissue which is known stretchable, and that is what we call stratified tissue, and other which is able to be stretched, that is what we call transitional epithelium, compound transitional epithelium. Then we have discussed that in the compound epithelium over basement membrane, the deepest layer is having a very high mitotic index, and that is what we call germinative layer. Then those cells are normally cuboidal in shape. They give rise to new layer of cell which we call intermediate layer, and they are generally polygonal in shape. And depending upon the cell present in the superficial layer, we have classified stratified epithelial tissue. So if the superficial layer was squamous, we call that stratified squamous epithelium. And depending upon either the squamous cells, they have been replaced by a horny layer of keratin, we call that keratinized stratified squamous epithelium, in which the superficial layer was made up of non-living cells or dead cells, cytoplasm was replaced, nucleus was not there. Or case number 2, if it was not keratinized, so superficial layer of squamous cell was living. This is what I have told you in my previous lecture. Now today we are going to start, depending upon the further superficial cell, what are the other types of compound epithelium. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों, और आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम उन टिश्यू के बारे में जिनके पास जो सुपरफिशियल लेयर है वो स्क्वैमस की जगह दूसरी होती है. इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. जो पहला टाइप का आपको टिश्यू बताने वाला हूँ मैं इन कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज स्ट्रेटिफाइड cuboidal epithelial tissue. Stratified cuboidal epithelial tissue. So just on a quick revision, let's say मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे नीचे क्या था. In red color we have mentioned that basement membrane. Let's say this was the basement membrane here, and next to basement membrane there were special cells which were cuboidal in nature with high mitotic index. We call that stratum malpighi or germinative layer or stratum germinativum. Then there was some other cells which were polygonal in nature. This diagram we have discussed earlier on. Just for your revision purpose, I am making this diagram again. So these are the new cells which has been formed by the multiplication of cells of deepest layer, and we call that intermediate cell. And finally in the superficial layer or topmost layer, the cells here, they look little bit squarish or they are cuboidal in nature. So this tissue, what we call, this tissue is known as stratified. Why the name is stratified? Because it is multi-layered. Stratified cuboidal epithelium. This tissue is known as stratified cuboidal epithelium. तो बच्चों मैं आपको पहले स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम के कुछ फीचर्स बता देता हूँ. उसके बाद लाइकवाइज जो टिश्यू में पढ़ते आ रहे हैं उनकी लोकेशन बताते जाएंगे. अगर आप बात करेंगे इनरमोस्ट लेयर की, सेल्स इन इनरमोस्ट लेयर, सेल्स इन इनरमोस्ट लेयर. यस प्लीज, व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर हियर शुड बी क्यूबॉइडल. मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऑथर इनको क्यूबॉइडल या कॉलमनर भी मेंशन करते हैं, मगर आप कॉलमनर ना याद करके सिर्फ क्यूबॉइडल याद रखें कि जो इनर मोस्ट की सेल होंगी वो क्यूबॉइडल होगी, मिडिल लेयर की जो सेल होगी पॉलीगोनल होगी, और जो टॉप मोस्ट लेयर की सेल होगी दे वुड बी क्यूब लाइक, दे वुड बी न्यूक्लिएटेड, दे वुड बी लिविंग. इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल, मिडिल लेयर cells in middle layer they would be polygonal, and cells in the superficial layer, I would love to mention here that these cells are living, they are nucleated, and they are cube like, like a cube.
It makes a sense? Please say yes or no. I really feel like you say yes. Okay, लोकेशन पे चलते हैं अब सीधा ना। जो जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उनकी लोकेशन ही हमें पढ़नी बाकी थी। अगर लोकेशंस की बात करें, लोकेशन ऑफ दिस टिश्यू, देखो आप याद रखना बच्चों कि जो सिंपल क्यूबोडियल था वो स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में था, और जो लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड होती है वहाँ पे स्टेडिफाइड क्यूबोडियल होता है। एक इजी तरीका है याद रखने का कि ग्लैंड की जो लार्ज वाली डक्ट होती है वहाँ पे सेल स्टेडिफाई हो जाती है, और जो स्मॉल डक्ट होती है वहाँ पे सेल सिंपल होती है। अच्छा, अगर दिमाग में ऐसा क्यों होता है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज़ बीन नेचुरली प्लेस्ड इन अवर बॉडी। तो हर चीज़ का जवाब नहीं मिल सकता है हमें, वी डोंट हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। एनीवेज, लोकेशन की बात करेंगे तो सिक्रेटरी डक्ट, जो सिक्रेटरी डक्ट होती है, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, कैसी ग्लैंड, लेट्स से स्वेट ग्लैंड। तो जो स्वेट ग्लैंड होता है उसकी जो लास्ट सिक्रेटरी डक्ट है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडल एपिथेलियम मिलेगा। इवन सेबेशियस ग्लैंड के अंदर स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड क्या पढ़ाया था मैमेलिया में, सेबेशियस ग्लैंड आर ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, सोडोरिफेरस ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड क्या हो जाती है, मेमरी ग्लैंड। इवन द डक्ट ऑफ पैनक्रिया, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। आई विल लव टू मेंशन हियर डक्ट ऑफ पैनक्रियाज, डक्ट ऑफ पैनक्रियाज। जब पैनक्रिया पढ़ाएंगे तो आपको बताऊंगा मैं कि पैनक्रियाटिक डक्ट कौन सी होती है, राइट। कौन सी डक्ट पैनक्रिया का सेक्रेशन लेके आती है इंटेस्टाइन तक, उस डक्ट की भी जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल होती है। एंड इवन जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड की डक्ट होती है, डक्ट ऑफ पैनक्रियाज एंड डक्ट्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, ये सारी की सारी कैसी है बेटा, ये सारी की सारी कंपाउंड एपिथेलियम है। किस तरह का कंपाउंड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड। कौन सा स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल। तो पहले तो आप याद रख लेंगे कि जो ग्लैंड्स वगैरह होती हैं उनकी डक्ट में, लार्ज डक्ट में स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल होता है, स्मॉल डक्ट में होता है सिंपल क्यूबोडियल। इजी वे टू रिमेंबर। इसके साथ साथ जो हमने ना एनिमल्स पढ़े हैं वर्टिब्रेट्स वगैरह, जैसे मैं फिशेज़ की अगर एपिडर्मिस की बात करूँ, फिशेज़ की एपिडर्मिस में स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियम होता है। फिशेज़ की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियम होता है। जो आपने वो टेल एम्फीबियन पढ़े थे, यूरोडेल्स, वहाँ भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियम होगा। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ फिशेज़ एंड यूरोडेल्स एम्फीबियन। यूरोडेल एम्फीबियन में कौन आए थे, याद है, यूरोडेल वो था जिसके अंदर जो टेल्ड एम्फीबियन थे। फॉर एग्जाम्पल सैलामेंड्रा, फॉर एग्जाम्पल सैलामेंडर्स, उनकी जो एपिडर्मिस वगैरह होती है बच्चों वो भी स्ट्रेटिफाइड स्केमियस होती, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल होती है। तो खैर ये तो एक रेयर सा एग्जाम्पल हो गई। ये प्लीज़ ये वाले एग्जाम्पल आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो जो स्ट्रेटिफाइड का नेक्स्ट टाइप था वो था क्यूबोडियल एपिथेलियम, जिसमें जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूबोडियल होती हैं, पॉलीगोनल रहेगा मिडिल वाला, और लिविंग सेल जो है, जो सुपरफिशियल है वो भी क्यूबोडियल होती है सुपरफिशियल लेयर में। देन वो आपकी जितनी ग्लैंड्स वगैरह हैं उनकी लार्ज डक्ट में मिलेगा, और साथ में एपिडर्मिस ऑफ फिशेज एंड यूरोडोल एम्फीबियन में मिलेगा। इज दैट क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा ये सेकंड वाला स्ट्रेटिफाइड था। पहले स्ट्रेटिफाइड कैसा बताया था मैंने, स्क्वेमियस, उसमें फिर दो टाइप बता दिए थे। फिर थर्ड स्ट्रेटिफाइड आपको बताने वाला हूँ मैं। अगर टॉप मोस्ट लेयर की सेल कॉलमनर हो जाए तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर टॉप मोस्ट लेयर की सेल कॉलमनर हो जाए तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सो वन बाय वन उसमें भी बताता जाऊंगा कि भाई डीपेस्ट लेयर में कैसी सेल हैं, इंटरमीडिएट लेयर में कैसी सेल हैं, और टॉप लेयर में कैसी सेल हैं, और उसके बाद उनकी लोकेशन वगैरह याद कर लेंगे कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है। राइट, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, पहला कंसेप्ट इनरमोस्ट लेयर में कैसा होगा, जो डीपेस्ट लेयर है, मिडिल लेयर में कैसी होगी, और सुपरफिशियल लेयर में कैसी होगी। इनरमोस्ट लेयर की जो सेल होंगी अगेन दे वुड बी क्यूबॉइडल,
आई रिपीट, एक आध किताब में ये लिखा है दे आर कॉलमनर, जो ठीक नहीं है, आप क्यूबोइडल याद रखें। मिडिल लेयर इज पॉलीगोनल एंड सुपरफिशियल लेयर इज कॉलमनर, दे आर लार्ज, टॉल, सिलेंड्रिकल। जो बताया है कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में कुछ वैसे ही होंगे। अब आप ये याद रखना कि देखो ये जो पिलर शेप शेल होती है इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जो कॉलमनर सेल हैं उनको पिलर शेप भी कहते हैं एंड दे आर विद न्यूक्लियस, राइट। तो नॉन लिविंग सिर्फ कैरेटिनाइज्ड के अंदर ही बताया, बाकी सब में लिविंग न्यूक्लियस रहेगा। अब जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है बच्चों, उसके अंदर दो अलग, एक मॉडिफिकेशन हो सकता है, उसके अंदर सीलिया हो भी सकते हैं और सीलिया नहीं भी हो सकते। तो इट कैन बी फर्दर it can be non-ciliated or it can be ciliated. Is that clear? It can be stratified non-ciliated columnar epithelium or stratified ciliated columnar epithelium. अगर नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है, इन आवर एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है जो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को रेगुलेट करता है हमारे ग्लॉटिस की। और वो जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है वो कवर्ड होता है एक एपिथेलियल टिश्यू से, वो होता है स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो फर्स्ट लोकेशन याद रखेंगे एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस के साथ साथ सम पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, एपिग्लॉटिस के साथ साथ सम पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। देखो मेल यूरेथ्रा में मैंने आपको ना सोडो स्ट्रेटिफाइड भी बताया होगा, और मेल यूरेथ्रा में कुछ स्ट्रेटिफाइड भी होता है, सम पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। तो जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोकेशन यहाँ भी लिखी है, ये लोकेशन वहाँ भी लिखी है, वो प्लीज़ याद रखें यहाँ पे सम पार्ट मेंशन किया है, माने कुछ पार्ट सोडो स्ट्रेटिफाइड भी होता है और कुछ पार्ट आपका स्ट्रेटिफाइड भी होता है। तो ये तो हो गया नॉन सिलिएटेड के बारे में। अब जो सिलिएटेड वाले हैं वो याद रखें, जो आपका साउंड बॉक्स है, जो लैरिंग्स है, उसके ऊपर होती है सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कहाँ प्रेजेंट होंगी? फर्स्ट एग्जाम्पल वुड बी इन अवर लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर ही वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड के बारे में बताया था, वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है। वोकल कॉर्ड जो है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। फिर आप एक एग्जांपल लैरिंग्स हो गया, ये तो ह्यूमन बॉडी का हो गया। जब हम बात करते हैं अबाउट फ्रॉग, तो फ्रॉग का जो ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी होता है उसके अंदर भी स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। सेकेंड एग्जाम्पल याद रखेंगे, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग। This bucopharyngeal cavity of frog also do consist of stratified ciliated columnar epithelium and even अगर हम बात करें जो आपका जो सॉफ्ट पैलेट पार्ट है, उसका जो अपर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का, that is made up of stratified ciliated columnar epithelium। अपर पार्ट, और सिंपली याद रखो सॉफ्ट पैलेट पार्ट, अपर पार्ट of soft palate in human। तो बच्चों ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड के बारे में। तो आपको ये बताया कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, वो स्ट्रेच नहीं होता है, और वो आपके डिपेंडिंग अपॉन द लेयर इन द सुपरफिशियल, उसको हमने नाम देते चले गए। आर वी डन अप टू हियर? अब तक यहाँ पे कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। कंपाउंड एपिथेलियम का जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और उसको अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है, जो नंबर ऑफ सेल लेयर होता है वो वेरी कर जाता है देन दिस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड अगर मल्टी लेयर्ड की बात करें तो ट्रांजिशनल भी मल्टी लेयर्ड है, तो उसको स्ट्रेटिफाइड से अलग क्यों पढ़ रहे हैं कि उसमें अलग अलग स्ट्रेटाज होती हैं, ज़्यादा स्ट्रेटा होती है, और वो स्ट्रेचेबल है, उसके अंदर पावर ऑफ डिस्टेंशन होता है, वो पावर ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी लाता है, इसलिए उसको अलग से पढ़ते हैं, एंड नेम इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो लास्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, उसके बाद देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ने के बाद हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू में दो टॉपिक और बच जाएंगे। एक तो हमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड एंड देयर एग्जाम्पल, उसके ऊपर एक लेक्चर हो जाएगा, आई गेस एक लेक्चर में वो कंप्लीट हो ही जाएगा, और उसके बाद एक लेक्चर हमें पढ़ना है अबाउट सेलुलर जंक्शंस। फिर आप 2-3 असाइनमेंट सॉल्व करना,
प्रैक्टिस के लिए। राइट, टुडे इज 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वी आर आवर सिलेबस इज गोइंग ऑन द ट्रैक, थोड़ा ट्रैक से आगे ही जा रहे होंगे शायद हम। ट्रांजिशनल देखो, ट्रांजिशनल वर्ड ना वहाँ पर भी यूज़ कर लेते जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। ट्रांजिशनल एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जो ज़्यादा स्टेबल वगैरह नहीं है। तो अगर स्टेबल नहीं है, कई बार ये स्ट्रेच होकर इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम नाम दिया है। ये ऐसा एपिथेलियम है जिसकी शेप वगैरह चेंज हो जाती है, जो स्ट्रेचेबल होता है। दैट्स वाई द नेम ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो लेट अस टॉक अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू नाउ। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल होते हैं अबाउट 4 to 6। इट कंसिस्ट ऑफ, पहले कुछ फीचर बता देता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स, राइट। नेक्स्ट, फिर आप याद रखेंगे इनकी जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल होती है वो क्यूब लाइक सेल की जैसी ही बनी होती है। इसमें भी जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल है, लाइक स्ट्रेटिफाइड इनरमोस्ट, अच्छा स्ट्रेटिफाइड से अलग होता है थोड़ा सा ये इसका मैट्रिटिक इंडेक्स, ये भी मैं मेंशन करूंगा अभी आगे चल के। इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल आर क्यूब लाइक। इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में भी कोई फीचर बताऊंगा एक अच्छा सा, कि इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों 200 से अलग होती है। कुछ बुक्स में ये भी मेंशन होगा इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जो कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, पर स्ट्रेचिंग की वजह से कई बार वो गायब सी हो जाती है। तो खैर ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर 4 to 6 लेयर ऑफ सेल होते हैं। इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर, इट इज स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल। ओके, सो 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स हो गए बच्चों। उसके बाद जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल होती है वो कैसी होती है, दे एक्चुअली क्यूब लाइक। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, जो इनरमोस्ट के बाद अगली 2 से 4 लेयर ऑफ सेल होती है, जो मिडिल 2 to 4 लेयर ऑफ सेल होती है, उनके अंदर पियर शेप या अम्ब्रेला शेप सेल होती है, जो देखने में थोड़ी पॉलीहेड्रल भी होती है। मिडिल 2 to 4 लेयर ऑफ सेल, layers of cell is composed of pear shaped, या वो थोड़ी सी ना कर्व्ड होती है लाइक अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला शेप्ड और दे लुक पॉलीहेड्रल। तो वहाँ पर पॉलीगोनल वर्ड बताया था, याद है? इसके अंदर पॉलीगोनल से थोड़ा चेंज हो गया, वो पियर शेप या अम्ब्रेला शेप हो जाती है। तो अगर अम्ब्रेला शेप्ड सेल की बात कर रहा है इन द मिडल लेयर, तो समझ लेना ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात कर रहा है। और इनकी जो आउटर मोस्ट 1 to 2 लेयर ऑफ सेल होती है वो समवाट ओवल इन नेचर होती है। आउटर मोस्ट, लास्ट वन, आउटर मोस्ट 1 to 2 layers of cell are somewhat oval in shape। ठीक है बच्चों, तो बता दिया कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो क्यूबोडियल होगी। उसके बाद अगली 2 से 4 लेयर जो होगी वो थोड़ी पियर शेप या अम्ब्रेला शेप होगी, और जो आउटर मोस्ट 1 to 2 लेयर ऑफ सेल होगी वो समवाट ओवल शेप होगी। ये तो होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट लेयर। फिर याद ये रखना कि जो डिफरेंट सेल जो होती हैं ये तभी अपीयर होती है जब वो रेस्ट कर रहा है, जब वो स्ट्रेच नहीं है। और जब ये स्ट्रेच कर जाता है तो जितनी सेल्स है सब फ्लैट हो जाती है। तो इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर दैट ऑल दीज सेल्स appear in this shape during the resting stage. All these shape of cell only appear during resting stage, because when it got stretched all the cell become flat, as after stretching
आफ्टर स्ट्रेचिंग ऑफ दिस एपिथेलियम ऑल सेल्स बिकम फ्लैट। समझ में आ रहा होगा आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पीस ऑफ टिश्यू है, ये मल्टी लेयर्ड पीस ऑफ टिश्यू है, और अभी ना जब मैं इनको स्ट्रेच किया हुआ है तो सारी फ्लैट है, और जब इनको रिलैक्स कर दिया तो वो क्यूब लाइक पॉलीहेड्रल और ओवल शेप सेल दिख रही है। तो दिस इज हैविंग ए पावर ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, एंड ड्यू टू स्ट्रेचेबिलिटी जो भी सेल वगैरह होती है वो कैसे हो जाती हैं, वो फ्लैट हो जाती हैं। और ये भी बहुत मेंशनिंग है कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होती है उसके ऊपर एक छोटी सी क्यूटिकल की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो भी वाटर प्रूफ हो जाता है। केराटिन नहीं है ये प्लीज़। आ क्यूटिकल कवरिंग, क्यूटिकल के अंदर पढ़ोगे थोड़े फैट वगैरह होते हैं, क्यूटिकल के अंदर थोड़े से लिपिड होते हैं, फैट होते हैं। आ क्यूटिकल कवरिंग may also be present over superficial layer of cell। और ये क्यों बताऊं, क्योंकि देखो क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा वैक्सी सब्सटेंस होता है और उसकी वजह से वो वाटर प्रूफ हो जाता है, विच मेक इट्स वाटर प्रूफ, विच मेक्स इट वाटर प्रूफ इन नेचर। सो आपके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की तरह वाटर प्रूफ हो जाती है। तो बच्चे ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होती है, 4 से 6 लेयर ऑफ सेल होते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल क्यूब लाइक होती है, मिडिल लेयर जो है वो अम्ब्रेला या पियर शेप्ड है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ओवल शेप्ड है। ये सारी की सारी शेप सिर्फ रेस्टिंग स्टेज में दिखती है, स्ट्रेच होने के बाद वो फ्लैट हो जाती है। और सुपरफिशियल लेयर के ऊपर एक लिपिड की कवरिंग, क्यूटिकल कवरिंग होती है जो इसको बना देती है वाटर प्रूफ। नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसकी जितनी भी सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया होगा ना वहाँ पे जब सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का डायग्राम बताया था, तो मैंने बताया होगा वो जो इंटरमीडिएट लेयर सेल है वो डेस्मोसोम से कनेक्टेड है। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो इंटरडिजिटेशन से कनेक्ट होती है। इंटरडिजिटेशन भी पढ़ोगे सेलुलर जंक्शन में। तो ये स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर, ऑल सेल्स of transitional epithelium are connected with interdigitation। ये भी एडहेरेंस में ही काम करते हैं इनके, इंटरडिजिटेशंस। तो इंटरडिजिटेशन जो है वो एक तरह के जंक्शंस हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे बाइंड कर जाती है एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन, एक दूसरे के अंदर वो इंटरमिंगल हो गई है। ठीक है, नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन का कंसेप्ट बताता हूँ, जो मैं काफ़ी देर से ना आपको बता भी रहा था और जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्रांजिशनल एपिथेलियम रेस्ट पर होती है तो उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन अपीयर होती है। आप देख सकते हो पीस ऑफ टिश्यू को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर वो रेस्टिंग स्टेज में है, और अगर वो स्ट्रेच है और आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल करना चाह रहे हो तो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखेंगी। तो कुछ ऑथर लिखते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो नहीं होती है कहना ठीक नहीं है, ये कहना ठीक है, इट एक्चुअली डिसअपियर आफ्टर स्ट्रेचिंग। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड दैट शुड बी मेंशन इन विच कलर। मैं कुछ पार्ट यहाँ से रब कर देता हूँ, 2 स्टेटमेंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ यहाँ पर। पहले तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला ही, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, during resting stage a basement membrane is observed, or let's call that is present, but it gets disappeared, this thing is very important to remember, when epithelium is stretched, when this epithelium is stretched, तो जब ये एपिथेलियम स्ट्रेच हो जाता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ बुक्स में आपको ना एब्सेंट वाला कंसेप्ट मिलेगा, तो एब्सेंट ना याद रखे, डिसअपियर वाला कंसेप्ट याद रखे तो ज़्यादा फेयर इनफ है कहना।
फिर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फिंगर लाइक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको इंटरडिजिटेशंस कहते हैं। तो इंटरडिजिटेशंस इन सब सेल को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। तो इंटरडिजिटेशंस में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दीज आर फिंगर लाइक साइडवाइज प्रोजेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, अगर ऊपर की तरफ थे तो वो माइक्रोविलाई कुछ अलग ही हो गया था। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस in the side wall of plasma membrane, in side wall of plasma membrane। तो ठीक है बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्विक रिवीजन, 4 से 6 लेयर ऑफ सेल होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ नज़र आती है जब ये रेस्टिंग करता है, स्ट्रेच के टाइम पे बेसमेंट मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। सेल की जो शेप है वो रेस्टिंग स्टेज में ही पता चलती है, स्ट्रेच के बाद तो सारी फ्लैट हो जाती है। और इसके अंदर वाटर प्रूफ आता है क्योंकि इसके अंदर क्यूटिकल है। अब पढ़ते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को कुछ ऑथर यूरोथेलियम भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे यूरिनरी सिस्टम को कवर करता है। जो ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी जो कवरिंग है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से होती है। सो फॉर दैट रीजन देयर इज़ वन मोर नेम ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड वी कॉल दैट यूरोथेलियम। यहाँ पे जो यूरो वर्ड है वो यूरिनरी ब्लेडर से आया है। दिस यूरो वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर। तो अगर मैं लोकेशंस की बात करूं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है, तो सिंपली यूरिनरी ब्लेडर की लोकेशन से मैं मेंशन करता चला जाऊंगा। जो भी हमारा यूरिनरी पाथवे है उसकी लोकेशंस मेंशन करता चला जाऊंगा। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने अबाउट किडनी, और किडनी का जो रेनल कैलिक्स वाला पार्ट होता है वहाँ से शुरू हो जाता है ये आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो लोकेशन की बात करें, इट स्टार्ट फ्रॉम रेनल कैलिक्स, फिर रेनल कैलिक्स के बाद क्या आता है, रेनल पेल्विस। यहाँ से क्या एराइज होती हैं, यूरेटस। यूरेटस कहाँ ओपन होता है जाके, यूरिनरी ब्लेडर में। तो यूरिनरी ब्लेडर जो है वो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच वगैरह हो रहा है, जो जो पार्ट स्ट्रेचेबल है। एंड सम पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, एंड पार्ट ऑफ इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। मैं इनिशियल नहीं लिखा है पर आप याद रख लेना, इन इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा देयर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनिशियल वर्ड यूज़ कर लो या प्रॉक्सिमल वर्ड यूज़ कर लो, इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा बोल दो या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा बोल दो, वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लोकेशन याद रखने का आसान तरीका है कि यूरोथेलियम याद रख लें, रेनल कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब फंक्शंस वगैरह बता देता हूँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम के। लेट मी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखो, ये जो एपिथेलियम होता है ये डिस्टेंशन प्रोवाइड करता है। डिस्टेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। इसकी वजह से ही देखो, जैसे जैसे यूरिन बनता रहेगा आपका रीनल पेल्विस भी एक्सटेंड कर जाता है, कैलिक्स एक्सटेंड कर जाता है, यूरेटर एक्सटेंड कर जाते हैं, यूरिनरी ब्लेडर एक्सटेंड कर जाता है और आपका यूरेथ्रा एक्सटेंड कर जाता है। तो इसका जो फंक्शन होगा, द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड डिस्टेंशन। फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स डिस्टेंशन, और डिस्टेंशन का मतलब बताया मैंने, बढ़ाव। किसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता है, मतलब खिंचाव करा देता है। इज दैट क्लियर? इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हियर कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइन करता है हमारे यूरिनरी ब्लेडर को, उसकी वजह से यूरिनरी ब्लेडर जो है वो स्ट्रेच कर जाता है कंसिडरेबली विदाउट बीइंग डैमेज्ड। अगर वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना होता तो शायद जैसे जैसे यूरिन फिल हो रहा होता वो स्ट्रेच करने की कोशिश करता, वो डैमेज हो जाता। यू गॉट माई पॉइंट? अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना होता तो अगर ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करते तो वो डैमेज हो जाता। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रोवाइड अ कंसिडरेबल स्ट्रेचिंग विदाउट बीइंग डैमेज्ड। ये कई बार में स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम्स वगैरह में, स्टेटमेंट मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह में। तो मैं फिर से डिक्टेट करता हूँ, या लिखने की ज़रूरत है। द ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लेडर कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू ए कंसिडरेबल लेंथ विदाउट बीइंग डैमेज्ड। दैट इज transitional epithelium of
urinary bladder can be stretched up to a considerable length without being damaged। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होंगे और ट्रांजिशनल एपिथेलियम वगैरह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। और सुनो, जब स्ट्रेच करते हैं, जब ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच हो जाता है तो बहुत ही थिन लगता है और इसकी जो सेल्स हैं वो फ्लैट भी हो जाती है और राउंडेड भी हो जाती है। मेजरली जब स्ट्रेच हो जाता है तो इट बिकम मच थिनर एंड द सेल बिकम फ्लैटेंड और समवॉट राउंडेड। अपॉन स्ट्रेचिंग, नेक्स्ट, अपॉन स्ट्रेचिंग ट्रांजिशनल एपिथेलियम बिकम मच थिनर। वैसे तो आप अपना लॉजिक वगैरह लगा के कह ही सकते थे, किसी चीज़ को स्ट्रेच कर दें तो थिक हो जाती है, थिन हो जाती है। डेट वुड बी थिन इन नेचर। आर वी डन अप टू हियर? ऑल राइट। सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का कंसेप्ट याद रखेंगे, नंबर ऑफ सेल याद रखेंगे और उसकी लोकेशंस वगैरह याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता था इनकी जो बेसल लेयर होती है उसके अंदर माइटोटिक इंडेक्स कम होता है। सी, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है उसके अंदर जो इरोजन ऑफ सेल होता है वो बहुत ही कम होता है। एज देयर इज लिटिल इरोजन ऑफ सेल इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो इरोजन ऑफ द सरफेस है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो बेसल लेयर की जो सेल होती है वो अकेजनल माइटोसिस दिखाती है। इट वॉज मैंशनिंग हियर as erosion of surface cell is occasional, only occasionally they keep erode, otherwise all the time यूरिन में आपको ये मिल जाती। cells of basal layer shows very less mitosis, लेसर माइटोसिस। जब भी रोड हो जाए वगैरह हो जाते हैं, नई सेल माइटोसिस करके उन सेल को रिप्लेस कर देती हैं, पर इसमें इतना ज़्यादा अकेजनली, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये नहीं होता है। इट इज़ ओनली फॉर अकेजन। इज दैट क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो एक क्विक रिवीजन कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को, बाद में एक कंपेरेटिव टेबल बता दूंगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में, बल्कि हम ना कंपेरेटिव टेबल ही बना लेते हैं और उसी में रिवाइज भी होता चला जाएगा आपका। एक टेबल बना लेते हैं कंपैरिजन की, जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो काश मुझे आप लोगों की आवाज़ आ पाती। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन यू विल बी इन क्लासरूम एंड दिस कोरोना पैंडेमिक वुड बी ओवर, राइट? ऑलमोस्ट वी हैव गॉट 3 to 4 months of that online teaching and we are just studying by camera. It's very hard to teach camera. All right, comparison on the closing note of compound epithelial tissue or simple epithelial tissue, comparison of simple and compound epithelium. तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो 2, 4, 5, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट से मेंशन कर ही देंगे। यहाँ पर मेंशन करेंगे सिंपल एपिथेलियम के बारे में और यहाँ पर मेंशन करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़े से जो कंसेप्ट है वो थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब पहला डिफरेंस सुनो। सिंपल एपिथेलियम कैसी होती है? देयर इज़ नो फन इन टेलिंग दैट इज़ यूनिलैमिनेटेड। यूनिलैमिनेटेड का मतलब क्या हुआ? सिंगल लेयर। यूनिलैमिनेटेड और सिंगल लेयर्ड। और ये कैसी होती है? मल्टीलैमिनेटेड और मल्टी लेयर्ड। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है कंपाउंड एपिथेलियम और सिंगल एपिथेलियम में, कि जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है? दैट इज़ सिंगल लेयर्ड। और जो कंपाउंड एपिथेलियम कैसी होती है वो आपका मल्टी लेयर्ड होती है। दैट इज़ वन ऑफ द मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। सिंपल एपिथेलियम पूरा का पूरा रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर
और कंपाउंड एपिथेलियम में सिर्फ डीपेस्ट लेयर रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, ओनली डीपेस्ट लेयर लाई ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जबकि यहां पर अगर बात करें सिंगल लेयर ऑफ सेल है एंड दे कंप्लीटली लाई ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक कंपाउंड एपिथेलियम में तो आपने ये भी डिस्कस कर लिया कि जब वो स्ट्रेच करता है तो उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपियर हो जाता है, जिसको कुछ ऑथर कहते हैं कि वो एब्सेंट ही था। देन जो सिंपल एपिथेलियम होती है उनकी अगर पोजिशनिंग की बात करें, जितने भी मोस्ट सरफेस ऑफ आवर बॉडी होते हैं जहाँ पर कम वियर एंड टीयर होना होता है, वहाँ पर सिंपल एपिथेलियम होगी, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम इतना डिवाइड नहीं कर रही हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में तो आपने पढ़ा कि वो डिवाइड करती रहती है, तो ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा तो कौन से एपिथेलियम चाहिए, ज़्यादा अगर तोड़ फोड़ होगी तो कौन से एपिथेलियम चाहिए, कंपाउंड या सिंपल? आंसर वुड बी कंपाउंड। तो मेनली सिंपल एपिथेलियम हमारे बॉडी के उन पार्ट को कवर करता है जहाँ पे ज़्यादा वियर एंड टीयर नहीं होता है। इट कवर moist surfaces of body, moist surfaces of body where wear and tear of cells is very less। ये किसका फीचर हो गया बच्चों? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। और कंपाउंड एपिथेलियम ऑन द अदर हैंड कवर दो सरफेसेस जहाँ पर कांस्टेंट वियर एंड टीयर होता रहता है। इट कवर, मोइस्ट नहीं दोज ही होना चाहिए यहाँ पर, कवर दो सरफेसेस वेयर वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो पहला आपको बताया मैंने नंबर ऑफ लेयर के बारे में, दूसरा आपको बताया कि ये पूरा का पूरा लाई करता है सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, वहाँ पे सिर्फ डीपेस्ट लेयर लाई करता है। सिंपल एपिथेलियम वहाँ होता है जहाँ ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं होती है सेल्स की, और कंपाउंड एपिथेलियम वहाँ पर होता है जहाँ कॉन्स्टेंटली सेल्स टूटते रहते हैं। और वियर एंड टिश्यू क्या लिख दिया ये, आप भी तो बताते नहीं हो कुछ। वियर एंड टीयर इज कॉन्स्टेंट, राइट? ऑलराइट, समझ में आता है। देखो वहाँ पे ना जो डीपेस्ट लेयर उसका माइटोटिक इंडेक्स इज द, उसको काफ़ी सारा श्रेय जाता है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन एपिथेलियम को लेके मत बैठ जाना। कंपाउंड एपिथेलियम मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, जबकि ये सिक्रेटरी भी होती है, एब्जॉर्प्टिव भी होती है और प्रोटेक्टिव भी होती है। इट इज़ सिक्रेटरी और लेट्स कॉल दैट आल्सो एब्जॉर्प्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव। सिंपल एपिथेलियम में तीनों चीज़ें होती है, और जो कंपाउंड एपिथेलियम है दैट इज़ मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर, दैट इज़ मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो बच्चों ये हो गया आपका अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। आई गेस दिस वाज लेक्चर नंबर 4। तो आपने क्या सीखा सारी चीज़? लेट मी गिव ए क्विक रिव्यू ऑफ दैट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और बीच में एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की 2 लेयर होती है। जो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है उसको बेसल लैमिना कहते हैं, जो मेनली ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, और जो कनेक्टिव टिश्यू बनाता है उसको रेटिकुलर लैमिना या फिब्रस लैमिना कहते हैं, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड वगैरह होते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये ना एक सरफेस प्रोवाइड करती है एपिथेलियल टिश्यू को ग्रो करने के लिए। फिर आपको मैंने बताया होगा कि भाई आपका जो स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई, स्ट्रियोसीलिया, सीलिया, फ्लैजिला एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, वो सारी टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल होगा, जैसा सेल का शेप है वैसा उनको नाम दे दिया है, और उनके फंक्शंस, उनकी लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। लोकेशन आपको याद रखना है। सिंपल एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई भी हो जाते हैं। देखो माइक्रोविलाई होने का नाम मतलब ब्रश बॉर्डर्ड नहीं है। माइक्रोविलाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ही ब्रश लाइक अपीयरेंस आ जाती है। जैसे आज एक देबोलीना बच्ची ने डाउट भी पूछा था, एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन कि पीसीटी को सर आपने बताया ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होती है,
DCT ब्रश बॉर्डर्ड क्यों नहीं होती है? DCT के पास ही बच्चों माइक्रोविलाई है, DCT भी रीएब्जॉर्प्शन करता है, पर नंबर ऑफ माइक्रोविलाई कम होते हैं, इसलिए उसको ब्रश बॉर्डर्ड नहीं कहते हैं। तो DCT इज़ नॉट ब्रश बॉर्डर्ड। देन आपने पढ़ लिया कि भाई वो आपका स्क्वेमस हो सकती है, क्यूबोडियल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, सिलिएटेड क्यूबोडियल, सिलिएटेड कॉलमनर, कॉलमनर के अलग अलग मॉडिफिकेशन एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर कंपाउंड की बात करें तो मल्टी लेयर्ड होता है, यहाँ पर कंपेरिजन बता ही दिया, could be stratified, could be transitional and all the things. So I believe आज शाम तक अपने सारे के सारे लेक्चर ऑफ एनिमल टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा ना हो कि प्राइवेट हो जाए अनलिस्टेड से, फिर ढूंढते फिर वो कहाँ गए लेक्चर। डाउनलोड करके रख रहे हो तो बड़े स्मार्ट हो आप, पर देखने तो पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर डाउनलोड करके सेव करते हैं कि वी विल बी डूइंग दैट लेटर, और ये वही बच्चे जो एग्जाम में मार्क्स नहीं स्कोर करेंगे, दे वुड बी हैविंग मैनी एक्सक्यूजेज। सो आप ये कंप्लीट करें, क्वेश्चंस वगैरह मैं भेजूंगा या आपको भी कोई बुक मिलता है तो उसको सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। लकीली दैट क्लास वाज नॉट दैट मच लॉन्ग। टेक केयर। अगला जो लेक्चर होगा दैट वुड बी एपिथेलियल टिश्यू एज ग्लैंड, जिसको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो टेक केयर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।